الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا. والصلاۃ علی من کان نبیا، اور درود و سلام ہو اس ذات پر جو نبی تھے اس حال میں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. وعلی آلہ، اور آپ کی آل پر، واصحابہ اجمعین، اور آپ کے تمام صحابہ پر. یہ بتایا تھا الحمدللہ میں جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ جنس کا ہے یا استغراق کا ہے؟ الف لام کی 4 قسمیں بیان کی تھی. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی. الف لام جنسی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے حقیقت اور ماہیت مراد ہو، افراد مراد نہ. الف لام استغراقی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے تمام افراد مراد. الف لام عہد خارجی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے بعض افراد مراد ہوں اور وہ بعض افراد خارج میں موجود ہوں. الف لام عہد ذہنی وہ الف لام ہے جس کے مدخول سے ایسے بعض افراد مراد ہوں جو خارج میں موجود نہ ہو بلکہ صرف ذہن میں ہو، بلکہ صرف کہاں ہو؟ ذہن میں ہو افراد. تو الحمد پر الف لام جو ہے جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور استغراق کا بھی ہو سکتا ہے. جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور استغراق بھی. ہم جو ترجمہ کرتے ہیں زیادہ تر وہ ترجمہ کرتے ہیں استغراق والا. الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے. تو یہ جو ترجمہ ہے استغراق کا ترجمہ ہے. کس کا؟ استغراق. للہ، اللہ کے لیے. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کہتے کس کو ہیں؟ تو اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کو جامع. اللہ نام ہے اس ذات کا جو تمام صفات کمالیہ کو جامع. عربی میں آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. یہ عربی کے اندر ہے اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال. اللہ نام ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کو جامع. ابدع یہ بتلایا تھا. ابدع یبدع ابداعا باب افعال سے اس کے معنی آتے ہیں بغیر نمونے کے پیدا کرنا. الافلاک، اس کو نسب کو پڑھا ہم نے چونکہ ابدع کا مفعول ہے اور فاعل ہے اس کا اللہ. ابدع کا فاعل اللہ ہے اور الافلاک کا مفعول ہے. الارضین یہ بھی مفعول بنے گا، معطوف بنے گا الافلاک پر، تو اس لیے منصوب پڑھا ہم نے. والصلاۃ، اور درود و سلام. درود الصلاۃ کے متعلق بتایا تھا کہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں. جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو اس سے جو مراد ہوتا ہے وہ رحمت اس کے معنی ہوتے ہیں. جب بندوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی دعا اور استغفار کے ہوتے ہیں. اس کے معنی کس کے ہوتے ہیں؟ دعا اور استغفار کے ہوتے ہیں. ایسے ہی جب صلاۃ کی نسبت پرندوں کی طرف یا جانوروں کی طرف کی جائے تو اس کے معنی تسبیح کے ہوتے ہیں. کس کے ہوتے ہیں؟ تسبیح کے ہوتے ہیں. تو مختلف معنی لفظ صلاۃ کے آتے ہیں. والصلاۃ علی من کان نبیا، درود و سلام ہو اس ذات پر جو نبی تھے اس حال میں کہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. پانی اور مٹی کے درمیان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا اس وقت گارا بنا ہوا تھا. ابھی انسان نہیں بنائے گئے تھے، صرف گارا بنایا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے نبی ہونا یہ متعین فرما دیا تھا. نبی ہونا متعین فرما دیا تھا. وعلی آلہ، اور درود و سلام ہو آپ کی آل پر. آل سے مراد کیا ہے؟ بتایا تھا کہ ہر متقی پرہیزگار آدمی آل سے مراد ہے. آل کی اصل اہل ہے. پہلے ہا کو حمزہ سے بدلا اور پھر حمزہ کو الف سے بدل دیا، آل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آل ہو گیا. واصحابہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر. اصحاب یہ بتایا تھا یا تو صحیح کی جمع ہے جیسا کہ انمار نمیر کی جمع ہے، یا بتایا تھا کہ اصحاب صحاب کی جمع ہے جیسے انہار نہر کی جمع ہے. جیسے انہار
नहार, नहरुन की जमा है। आगे बात समझ में? दो लफ्ज आते हैं, एक आता है अस्हाब और एक आता है सहाबी। एक आता है सहाबी, साहिबुन और सहाबीयुन। अस्हाब जो है ये हर एक के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी साथी के लिए अस्हाब का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। सहाबी का जो लफ्ज है वो खास है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों के साथ। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी हर उस इंसान को कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की हो और ईमान पर उसका खात्मा हो, ईमान पर उसका खात्मा हो। तो सहाबी जो है ये खास है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों को कहा जाता है, और अस्हाब जो है वो आम है, किसी भी साथी को कह सकते हैं। वबाद, दुरूद व सलाम के बाद, फहादिहि इद्दतु फुसूलिन, ये चंद फसलें हैं। फा कौन सा है? फा जज़ाइया, फा जज़ाइया है। फा जज़ाइया किसको कहते हैं? शर्त के जवाब में जो फा आता है उसको फा जज़ाइया कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है फा फसीहिया, फा फसीहिया। फहादिहि इद्दतु फुसूलिन, ये चंद फसलें हैं। फी इल्म मीज़ान, इल्म मीज़ान में, इल्म मंतिक में, इल्म मंतिक में। इल्म मीज़ान या इल्म मंतिक का दूसरा नाम है। ला बुद्दा मिन हिफ्ज़िहा, जरूरी है जिनको याद करना, व ज़ब्तिहा, और उनको ज़ब्त करना, महफूज करना। लिमन, उन लोगों के लिए जो इरादा करें याद करने का, मिन उलिल अज़हानी, ज़हीन लोगों में से, ज़हीन लोगों में से, अज़हान ज़हीन की तरह। व अलल्लाहि तवक्कुल, अल्लाह ही पर भरोसा है। व हुवल मुस्तआन, वही मदद तलब करने के ज़्यादा लायक है, वही मदद तलब करने के ज़्यादा लायक है। ये बता दिया कि ज़हीन लोगों का काम तो याद करने का है, लेकिन भरोसा अल्लाह पर ही होना चाहिए। अपने ज़हन पर भरोसा अगर करोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अल्लाह ताला से मदद भी मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा भी होना चाहिए। ये तो हो गया किताब का खुतबा, किताब का ये खुतबा है। आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाहि अलैहि ने फिर बाज़ाबता किताब को शुरू किया है मुक़द्दिमे से। इससे मुक़द्दिमे से ये लफ्ज़ जो है दो तरह पढ़ा जाता है, एक मुक़द्दिमा और एक मुक़द्दमा। एक पढ़ा जाता है ये मुक़द्दिमा, इसमें फ़ाइल का सीगा, और इसको इसमें मफ़ऊल का सीगा भी पढ़ते हैं। मुक़द्दमा क्या पढ़ते हैं? मुक़द्दमा। मुक़द्दिमा के माना है आगे करने वाला, आगे करने वाला, और मुक़द्दमा के माना है आगे किया हुआ, आगे किया हुआ। दोनों पढ़ना इसमें दुरुस्त है। अगर मुक़द्दमा पढ़ेंगे आगे किया हुआ, तो मतलब ये है कि किताब के शुरू में, चूंकि किताब के शुरू में है तो आगे किया हुआ है, इस एतबार से भी सही है। और अगर इसको पढ़े हम मुक़द्दिमा आगे करने वाला, तो इस एतबार से भी ये सही है। क्यों सही है? इसलिए कि मुक़द्दिमे के अंदर जो बातें जिक्र की जाती है, मुक़द्दिमे के अंदर जो बातें जिक्र की जाती है, अगर कोई तालिब इल्म उन बातों को याद कर लेता है, उन बातों को याद कर लेता है, तो वो दूसरे तालिब इल्मों से आगे बढ़ जाता है, दूसरे तालिब इल्मों से वो आगे बढ़ जाएगा। तो गोया कि मुक़द्दिमा आगे बढ़ा देता है उन तलबा को जो इसके अंदर जिक्र की हुई बातों को याद कर लेते हैं। तो इस एतबार से मुक़द्दिमा सही है। ये असल लिया गया है मुक़द्दिमतुल जैश, इससे मुक़द्दिमतुल जैश लफ्ज़ आता है, वहाँ से इसको लिया गया है। मुक़द्दिमतुल जैश कहते हैं किसको? ये जो फौजें होती हैं, क्या होती हैं? फौजें। ये कई टुकड़े होते हैं फौज के, इनके कई टुकड़े किए जाते हैं, कई हिस्से होते हैं फौज के। अगर 1000 लोगों की फौज है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे 1000 के 1000 एक साथ हो जाएंगे, बल्कि अलग अलग हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा होता है मुक़द्दिमतुल जैश। एक हिस्सा कौन सा होता है? मुक़द्दिमतुल जैश। मुक़द्दिमतुल जैश जो हिस्सा होता है फौज का, वो उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो सारी फौज से आगे जाता है, सारी फौज पीछे होती है और वो फौज से आगे चलता है, फौज से वो आगे चलता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो फौज को कहाँ क़याम करना है, रास्ते में कहाँ ठहरना है, उसका इंतज़ाम उसको करना है। पानी वगैरह का जो इंतज़ाम है वो सब किसके ज़िम्मे होता है? मुक़द्दिमतुल जैश के ज़िम्मे होता है। तो गोया कि फौज के ठहरने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी के सारे इंतज़ाम मुक़द्दिमतुल जैश के ज़िम्मे होते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है मुक़द्दिमा वहाँ से लिया गया, चूँकि वो फौज का अगला हिस्सा होता है। हराब दस्ता उसको कहते हैं,
जो टुकड़ी होती है फौज की उसको कहते हैं मुकद्दिमतुल जैश, उसी से ये मुकद्दिमा दिया गया है। तो बहरहाल मुकद्दिमा और मुकद्दमा दोनों इसको पढ़ सकते हैं। आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अब जिक्र की है इल्म की तारीफ, इल्म की तारीफ जिक्र की है। देखिएगा, इल्म अन्नल इल्म युतलक़ु अला मानी, जान लो कि इल्म का इतलाक किया जाता है चंद मानी पर, इल्म का इतलाक किया जाता है चंद मानी पर। इल्म सबसे पहले तो तुम इसके माना समझो, इल्म के माना है जानना, इल्म के माना है जानना। किताब से हट करके इल्म की तारीफ क्या होगी? इल्म की तारीफ क्या होगी? किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज को जान लेना, ये क्या है? उस चीज का इल्म है, उस चीज का इल्म है। हमने बोला ज़ैद, क्या बोला हमने? ज़ैद बोला, तो ज़ैद के बारे में हमें एक इल्म हुआ, ज़ैद के बारे में हमें इल्म हुआ, ज़ैद के बारे में हमने कुछ जाना, तो ये ज़ैद का इल्म हो गया। ये ज़ैद का जानना, क्या इसको जानना बोलते किसको है? जानना असल क्या होता है, हमारे सामने कोई भी चीज बोली गई, कोई भी चीज बोली गई तो जहन के अंदर उसका एक फोटो आ जाता है, जहन के अंदर उसका एक नक्शा, उसका एक फोटो आ जाता है, आता है। हमने मिसाल के तौर पर बोला बैतुल्लाह, अल्लाह का घर, तो खाना काबा का जो एक नक्शा है वो हमारे जहन के अंदर बैठ गया, ये खाना काबा का इल्म है, ये खाना काबा का इल्म है। हमने बोला मदनी मस्जिद, तो उसका एक नक्शा हमारे जहन में आ गया, तो ये जो है मदनी मस्जिद का हमें इल्म हो गया। हमने बोला दिल्ली की जामा मस्जिद, तो उसका एक नक्शा हमारे दिमाग में आ गया, तो ये जामा मस्जिद का इल्म हो गया। अगर किसी चीज को हमने बोला और उसका नक्शा जहन में नहीं आ रहा, उसका नक्शा जहन में नहीं आ रहा है, तो अब ये कहा जाएगा कि हम उस चीज से नावाकिफ हैं, उस चीज से जाहिल, उस चीज से हम जाहिल हैं, हमें उसका इल्म नहीं है, हमें उसका इल्म नहीं है। उनका एक परिंदा है, एक परिंदा है, हमने देखा नहीं कभी, सिर्फ सुना है, तो उनका हमने बोला, हमारे दिमाग में कोई नक्शा उसका आता ही नहीं है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं उसको, कभी सुना भी नहीं कि उसका किस तरह का वो परिंदा होता है, तो उसका नक्शा हमारे दिमाग में नहीं आया, तो गोया कि हम उससे जाहिल हैं, हम उसके इल्म से जाहिल हैं, हमें उसका इल्म नहीं है। ये तो हो गया आम ज़बान में इल्म। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ पर जो है इल्म की तारीफें की हैं 5, इल्म की तारीफें कितनी की हैं? 5। नंबर 1, अहदुहा हुसूलु सूरति शैइ फिल अक़्ल, उनमें से एक हुसूल सूरत शैइ, शै की सूरत का हासिल होना है अक्ल में, उनमें से एक शै की सूरत का हासिल होना है अक्ल में। जैसे मैंने बताया कि हमने कोई लफ्ज बोला और उस लफ्ज को बोलते ही उसका एक नक्शा हमारे जहन में आ गया, तो इस नक्शे का जहन में आना, इस नक्शे का जहन में आना, ये क्या है? इल्म। ये क्या है? इल्म। पहली तारीफ। दूसरी तारीफ क्या है? सानिहा अस्सूरतुल हासिलतु मिनश शैइ इंदल अक़ली, शै की वो सूरत जो हासिल हो अक्ल में, शै की वो सूरत जो हासिल हो अक्ल। ये दो तारीफें तकरीबन एक सी हैं, थोड़ा सा फर्क है। पहली जो है शै की सूरत का अक्ल में हासिल होना, यानी मस्दर जो है, माने मस्दर जो है हासिल होना, ये क्या है? इल्म है। और दूसरी जो तारीफ है उसके लिहाज से हासिल होना ये इल्म नहीं है, बल्कि वो फोटो और नक्शा जो जहन में आ गया, वो फोटो और नक्शा जो जहन में आ गया है, ये इल्म। दोनों में फर्क समझ में आ रहा? पहली जो तारीफ है वो क्या है? नक्शे का दिमाग में आना, नक्शे का दिमाग में आना, जहन में आना, ये है इल्म। और दूसरी तारीफ के लिहाज से इल्म क्या है? नक्शे का जहन में आना इल्म नहीं है, बल्कि वो नक्शा जो आया है, वो नक्शा जो दिमाग में आया है, वो सूरत जो दिमाग में बैठी है, वो इल्म, वो क्या है? इल्म है। दोनों तारीफों में थोड़ा सा फर्क है। तीसरी तारीफ देखिए, सालिसुहा अल हाज़िरु इंदल मुदरिक, तीसरी किस्म क्या है? अल हाज़िरु इंदल मुदरिक, मुदरिक के पास हाजिर होना, मुदरिक के
हाजिर होना। ये हाजिर को वाला नहीं है जो हम उर्दू में बोलते हैं कि कोई चीज है और वो हमारे पास में आ गई तो उसको हम हाजिर बोलते हैं। यहाँ पर जो हाजिर है वो हाजिर से मुराद है बगैर हासिल किए, बगैर हासिल किए खुद ब खुद मालूम हो जाना, बगैर हासिल किए खुद ब खुद मालूम हो जाना, वो चीज मुराद है। यहाँ पर मुद्रिक, आप इसको क्या समझे, मुद्रिक बस ये अकल ही की तरह है। मुद्रिक अकल का दूसरा नाम आप इसको समझ लें, हालांकि दूसरा नाम नहीं है अकल का, थोड़ा सा अकल और मुद्रिक में फर्क है, लेकिन आप फिलहाल इतना समझे कि अकल का दूसरा नाम मुद्रिक है। तो अल हाजिर इंदल मुद्रिक, मुद्रिक में हाजिर होना, मुद्रिक के पास आ जाना, मुद्रिक के पास में, यानी बगैर हासिल किए हुए, बगैर हासिल किए हुए उस चीज का हासिल हो जाना। कुछ चीज ऐसी होती है जिनको हम बाकायदा सीखते हैं, कुछ चीजें वो होती हैं जो बगैर सीखे आ जाती है, कुछ चीजें वो बगैर सीखे आ जाती हैं। कुछ चीजों का इल्म ये कि हासिल करना पड़ता है, कुछ चीजों का इल्म बगैर हासिल किए खुद ब खुद हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। तो अल हाजिर इंदल मुद्रिक, मुद्रिक के पास में हाजिर होना, ये तीसरी तारीफ है। चौथी तारीफ क्या है, राबिउहा कबूल नफ्सी तिलका सूरती, नफ्स का उस सूरत को कबूल करना, नफ्स का उस सूरत को कबूल करना। कबूल का मतलब ये है कि जहन में वो सूरत अच्छी तरह बैठ जाए, जहन में वो सूरत अच्छी तरह बैठ जाए। इब्तिदाई जो मरहला होता है उसमें सूरत बैठती नहीं है, जहन में आती जाती रहती है, सूरत जहन में बैठती नहीं, आती जाती रहती है। किसी चीज को आपने देखा नहीं है, किसी चीज को आपने देखा नहीं है, एक ने कुछ बता दिया, एक ने कुछ बता दिया। अब मैंने तुम्हारे सामने बोला दिल्ली की जामा मस्जिद, तुम्हारे सामने एक सूरत है, किसी ने कुछ और बता दिया, फिर वो सूरत आ गई, और किसी ने बता दिया, फिर वो, अब इनमें से कोई भी सूरत जहन में बैठेगी नहीं, कभी वो सूरत आएगी, कभी वो सूरत आएगी, कभी वो सूरत आएगी। तो ये इल्म नहीं है। इल्म कब होगा, जब सूरत जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए, अच्छी तरीके से वो फोटो जहन में बैठ जाए, ये तब इल्म होगा। कितनी तारीफें हो गई जी, चार। पांचवी तारीफ क्या है, खामिसुहा, पांचवी किस्म अल इजाफतुल हासिलतु बैनल आलिमी वल मालूमी, वो इजाफत जो हासिल हो आलिम और मालूम के दरमियान, वो इजाफत जो हासिल हो आलिम और मालूम के दरमियान। आलिम जानने वाला, मालूम जिस चीज को जान रहे हैं, जिस चीज का इल्म हासिल कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है, इन दोनों के दरमियान जो, या कहने जो कनेक्शन है जानने वाले के और जिस चीज को जाना गया है, इन दोनों के दरमियान कनेक्शन होगा, तभी तो आदमी को मालूम होगा। अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा दोनों का, तो फिर इल्म हासिल नहीं होगा। तो दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का नाम इल्म, इस कनेक्शन का नाम असल इल्म। ठीक है, ये पांच तारीफें हैं। इन तारीफों में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं है। असल जो है इल्म नाम है किसी भी चीज का वाज़ेह हो जाना, किसी भी चीज का वाज़ेह। अगली बात समझ में, असल इल्म जो है वो क्या है, किसी चीज का वाज़ेह हो जाना, ये इल्म कहलाता है। अलबत्ता वजाहत किस चीज से होगी, इल्म जो वाज़ेह होगा वो किस चीज से होगा, उन चीजों की ये तारीफ है। असल ये जो तारीफें हैं उन चीजों की है, और ये जो इख्तिलाफ है इल्म की तारीफ में, ये इल्म में नहीं है असल इख्तिलाफ, असल ये इख्तिलाफ है आला इल्म में, यानी इल्म जो हासिल होगा वो किस तरीके से हासिल होगा, इल्म जो हासिल होगा वो किस तरीके से होगा, उस चीज में असल ये इख्तिलाफ है। तो इल्म को कहते हैं इंकिशाफ शै को, किसी चीज का मुनकशिफ हो जाना, वाज़ेह हो जाना, ये हकीकत इल्म है। अलबत्ता इल्म वाज़ेह किस चीज से होगा, इल्म का इंकिशाफ किस तरह से होगा, तो कुछ लोगों ने कहा हुसूल से इंकिशाफ होगा, किसी ने कहा नहीं हुसूल से नहीं हो सकता, बल्कि उस सूरत से इंकिशाफ होगा जो सूरत दिमाग में बैठ रही है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, बल्कि वो इल्म जब तक हाजिर अंदर मुदरिक ना हो तब तक वो इंकिशाफ नहीं हो सकता। कुछ ने कहा नहीं, जब तक नफ्स कबूल ना कर ले तब तक इंकिशाफ नहीं होगा। कुछ ने कहा नहीं, बल्कि आलिम और मालूम के दरमियान में जो कनेक्शन है, जो निस्बत है, उससे इंकिशाफ होता है। तो इल्म तो असल एक ही है, इंकिशाफ शै, इंकिशाफ शै, इसका नाम इल्म है। अलबत्ता इंकिशाफ होगा किस तरीके से, तो ये पांच तरीके हैं इंकिशाफ के, जिनको मुसन्निफ ने इल्म से ताबीर कर दिया। तो पांचों सूरतों का, पांचों अक़साम का खुलासा ये है कि इल्म जो है वो इंकिशाफ शै का नाम है। इसका इंकिशाफ शै का। हाँ, अलबत्ता
انکشاف کس طریقے سے ہوگا؟ وہ مختلف طریقے ہیں جن کو مصنف نے علم کی 5 تعریفوں سے تعبیر کر دیا۔ بس اتنا ہی آپ یاد کریں اس کو، باقی انشاءاللہ